Very good evening to all the students, respected parents, and the teachers. This is Vikas, principal of Aryans Model School, and today I'm here before you to discuss on the very important topic, which is summer vacations. Summer vacations, which are always planned in the month of June. Today we are standing on 11th of June, and why we have not started planning our summer vacations. So let's discuss on that point first. So students, let's understand the concept of vacations. Let's understand the concept of Sundays. Let's understand the concept of taking breaks, right? So when we have a very hectic schedule, when we have lot of things to do within 1 week, when we are in a very repetitive kind of routine for a month, for 2 months or something, then we need a break to we need a break to restructure ourselves, to take to relax, to break off that load which is on our head or something, right? So, as you remember, in the month of April when the new session starts, so we have lot of things to do in the month of April. A new class, new session, new subjects, new teachers, everything is new. बहुत सारी गर्मी होती है, there are lot of heat outside. So, in those 2 months, everyone got completely exhausted. In the month of June, the heat itself become more severe. Then we plan to take a leave. That's why here comes the summer vacations. ताकि वो that 1 month we'll get to rejoice ourselves. वो इसलिए नहीं है कि आप 2 महीने बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और अब आपने 1 महीना बिल्कुल नहीं पढ़ना है. यू रिमेंबर समर वेकेशंस में बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क भी दिया जाता है ताकि आप घर पे रह के, ठीक है, आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर पाएँ. तो इस बार भी चैलेंजेस वैसे ही थे, बट सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल इटसेल्फ, सॉरी in their home itself, and this COVID situation has turned everything upside down. All the traditional method has been changed. How a student used to study, how a teacher used to study, teach the student, that everything has been changed. So are we. So we have decided कि अप्रैल मंथ के अंदर देयर वर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि स्कूल ओपन होंगे या नहीं होंगे, व्हाट विल बी द वे गोइंग फॉरवर्ड ऑफ द टीचिंग एंड द स्टडिंग. तो धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया. स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, नोबडी वाज रेडी फॉर दैट सिचुएशन कि कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है. हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की. देन वी थॉट कि बच्चे काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ों को सीख रहे हैं, बट वी वर नॉट श्योर कि वो कितना सीख रहे हैं. देन वी केम अप दैट जब हम रेगुलर चीज़ों को भेज रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितना बच्चे को समझ में आया. देन वी केम अप विद द पीटी एग्जामिनेशन, ठीक है, जो आज टुडे इज़ 11th of June और ऑलमोस्ट 1st to 8th सभी क्लासेस के एग्ज़ाम आज ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है. टुडे वाज द लास्ट एग्ज़ाम ऑफ 6th to 8th. 1st to 5th के पहले ही 9th of June को ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे. अभी 9th to 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, which are going to over by 16th of June. So what we will do after that examination time, for example 1st to 8th, what are we planning to do on with 1st to 8th class in next 15 to 18 days, and after 16th of June what will be the regular study planning for the students of 9 to 12th. So let's understand the summer vacation planning for you that has been prepared with the help of your teachers, your HODs, right? So बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स हमने थोड़ा सा इवेलुएट किए हैं, तो द परफॉर्मेंस इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट ऑल. So it has two things which came into the picture. One,
कि आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट रेडी एंड दे आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद द ऑनलाइन पैटर्न, कि कहाँ से उनको वीडियो से चैप्टर को समझना है, कहाँ से रिटन नोट्स। अब रिटन नोट्स के ऊपर भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, वर्ड मीनिंग है, न्यू टर्म्स हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, तो वो कैसे करना है। सो दैट पर्टिकुलर पार्ट वाज मिसअंडरस्टूड। देन द लाइव क्लासेस, स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या पूछना है लाइव क्लासेस में, ठीक है। अब दिस इज़ द सेम क्लास, जो आप क्लास के अंदर बैठते थे वही टीचर थे, अब यू आर फेसिंग दैट लाइव क्लासेस ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। लेकिन कुछ बच्चे उसको समझ नहीं पाए, ठीक है, इसीलिए उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। और हमने भी ऑब्ज़र्व किया कि काफ़ी सब बच्चों के ग्रेड्स काफ़ी डाउन हैं, ठीक है। जो बच्चे जिनको हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छे कैपेबल हैं और करते हैं, उन बच्चों के भी मार्क्स काफ़ी डाउन हैं। कुछ बच्चों के अच्छे हैं, कुछ बच्चों के डाउन हैं, ठीक है। तो ओवरऑल वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि आपने कितने अच्छे से काम किया। देन वी डिसाइडेड कि भाई अब क्या किया जाए, ऐसे रन ओवर दिस सिलेबस तो नहीं होगा, वी आर नॉट गोइंग टू रनिंग ओवर दिस सिलेबस, राइट। सो व्हाट वी शुड डू, वी हैव 15 to 20 days, ठीक है। तो इनमें हम करते क्या थे, हम पहले भी जो काम करवाया जा चुका है उसी को होमवर्क वगैरह उन चीज़ों में हम करते थे। सो ओवर हेयर वी हैव डिसाइडेड कि इस समर वेकेशन के अंदर जो बच्चों की परफॉर्मेंस, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, पीटी एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है, देन वी डिसाइडेड कि भाई ठीक है, तो अब रिवीजन ही कैरी फॉरवर्ड करना है, बट कैसे, ठीक है। एक उसका भी हमने एक मेथड डिसाइड किया है कि रिवीजन वर्कशीट आपके टीचर्स बना रहे हैं, वी विल कम अप विद दोज रिवीजन वर्कशीट, और वो आपको ऑन द डेली बेसिस दिया जाएगा, ठीक है। सो वी हैव फ्यू पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू कवर, ठीक है। तो रिवीजन वर्कशीट जो हो गई, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा अब सेकंड पॉइंट के अंदर हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस पॉइंट के ऊपर चलते हैं, विच इज़ नर्सरी टू LKG। ये बहुत यंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए, बट अगेन, ठीक है, बीइंग ए प्रिंसिपल, व्हेन आई सी द अटेंडेंस ऑफ लाइव क्लासेस, आई कैन वेरी इजीली से दैट कि नर्सरी टू UKG 80% है लाइव क्लास की अटेंडेंस, ठीक है। और फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास यही 50 से 60% है, ठीक है। अब 6 to 8th में आप चले जाइए, यही रेशियो 50% है, ठीक है। और 9th to 12th में आप चले जाइए, यही रेशियो आपकी इट इज़ लेस देन 40%, सॉरी, सो ये लेस देन 40% है। सी द डिक्लाइन, ठीक है, 80%, ठीक है, देन योर 50 to 60%, देन 50%, ठीक है, देन 40%, ठीक है। सो ये हो रहा है, ठीक है। सो दीज स्टूडेंट्स आर रियली लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इनमें इन बच्चों से ज़्यादा अप्रिशिएबल इनके पेरेंट्स हैं, जो बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके मंथली असेसमेंट जो अप्रैल मई मंथ में हुए थे, तो वैसे ही मंथली असेसमेंट हमने प्लान किए हैं इन द मंथ ऑफ जून आल्सो, ताकि ये बच्चे रेगुलर अपनी स्टडीज़ के टच में रहें, इनका डिस्कनेक्ट ना हो। बहुत थोड़ा थोड़ा करके हमने सिलेबस को इनका आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई लोड नहीं है, बस इनको रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटा बैठने की आदत इनकी बनी रहे, ठीक है। इनका अपने जो इनका रेगुलर सिलेबस है उससे थोड़े से टच में रहें, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे जितना जल्दी सीखते हैं, अगर आउट ऑफ टच हो जाते हैं तो जूनियर मोस्ट बच्चे उतने जल्दी ही भूल जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी इन टच विद देयर रेगुलर सिलेबस ऑल द टाइम। तो यहाँ हम इनके आर्ट एंड डांस की एक्टिविटीज़ भी वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जो आपके होमवर्क के हिसाब से आएंगे, ठीक है। देन लेट्स मूव टू दी फर्स्ट टू एट्थ क्लास, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सो मेन सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, SS है, इंग्लिश है, ठीक है, आपका मैथ्स है, ठीक है, साइंस है, ठीक है, आपका संस्कृत है, हिंदी है। तो यहाँ मेन सब्जेक्ट में भी देर आर 2 कैटेगरीज। वन कैटेगरी इज़ योर लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड सेकंड कैटेगरी इज़ योर मैथमेटिक्स, साइंस एंड
एसएस सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स, साइंस और एसएस के सब्जेक्ट में टीचर विल प्रोवाइड यू दी चैप्टर बेस्ड एमसीक्यू रिवीजन वर्कशीट, ठीक है। वो आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, उसको आप सॉल्व करेंगे अपनी रफ नोटबुक के अंदर, ठीक है, और उससे आपका जो चैप्टर है वो फिर एक बार से रिवाइज हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी में व्हाट योर HODs हैज़ कम अप विद HODs हैव कम अप विद सॉल्यूशन, कि वो जो वर्कशीट देंगे वो दैट वर्कशीट विल नॉट बी बेस्ड अपॉन योर चैप्टर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। दैट वर्कशीट विल हैव 3 पोर्शन। वन पोर्शन इज़ योर रीडिंग स्किल्स। जैसा कि आप जानते हैं लैंग्वेज has 3 portion when you attempt a board examination in 10th class and 12th class. So it will have 3 portion. One is reading skill, second is writing skill and third is your literature, और जो आपका बुक का पोर्शन होगा। तो उसी के हिसाब से आपकी वर्कशीट टीचर्स ने डिसाइड की है, बनाई है। तो जो वर्कशीट है आपकी उस हिंदी और इंग्लिश की वर्कशीट में पहला जो पोर्शन होगा वो रीडिंग स्किल का होगा। पैसेज दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश के अंदर, आपको ढूंढना है, उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे वो आपको पढ़ना है, ढूंढना है और उसके आंसर्स आपने रफ नोटबुक के अंदर लिख लेने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश रफ नोटबुक, ध्यान से, ये बच्चे बार बार पूछेंगे इसलिए आई एम हाईलाइटिंग दिस अगेन, रफ नोटबुक। फिर सेकेंड पोर्शन होगा जो आपका वोकेबलरी बेस्ड होगा, ठीक है। वोकेबलरी में एवरी डे यू विल बी गिवन सम 20-30 वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। उन वर्ड्स के मीनिंग आपने ढूंढने हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेशन विद योर मदर, फादर, योर एल्डर्स, ठीक है। और उनको आपने अपनी रफ नोटबुक के अंदर या हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक भी आप अपनी लगा सकते हो और उसके अंदर आप कर सकते हो। एंड थर्ड होगा आपका ग्रामर का टॉपिक। बच्चों लैंग्वेज के अंदर व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द लैंग्वेज, राइट। सो इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, वो हम बचपन से नहीं बोलते हैं, हम उसको सीखते हैं। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी ग्रामर सीखना ज़रूरी होता है, right? So grammar is most important part of the language, whether it is Hindi, whether it is English, whether it is Sanskrit or any language. When you learn about the grammar, when you are excellent in the grammar, फिर आप किसी भी language को बहुत अच्छे से आप बोल सकते हैं, right? So don't get confused between the language and the communication skills and the स्पीकिंग स्किल्स, राइट। तो एक बार आपको लैंग्वेज अच्छे से आ गई, ग्रामर अच्छे से आ गई, आपकी लैंग्वेज अच्छी हो गई, ठीक है, ठीक है, वो अच्छी हो गई तो आप बोल भी बहुत अच्छे से पाएंगे, राइट। बोलना, स्पीकिंग पार्ट इज़ ऑलवेज ऑन दी प्रैक्टिस, राइट। सो इफ़ यू विल हैव मोर प्रैक्टिस इन स्पीकिंग good language, I mean good sentences without any mistake, then you will have a very good proficiency in the speaking, right? एसएस साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर आपको MCQ बेस्ड रिवीजन वर्कशीट मिलेंगी। हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको ये 3 सेक्शन बेस्ड आपको एक वर्कशीट मिलेंगी जो आपने अपनी हॉलीडे होमवर्क नोटबुक के अंदर करना है। देन वी विल कवर द एडिशनल सब्जेक्ट आर्ट वर्क, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास टू 8th क्लास आप लोगों को आर्ट की बुक है आप लोगों के पास। फर्स्ट और सेकंड में ऑक्सफोर्ड की आर्ट बुक है और 3rd to 8th के अंदर सार पब्लिकेशंस की आर्ट बुक है। तो काफ़ी बच्चों ने जिन्होंने नहीं ली है, आई कैन टेल देम कि दे कैन कम टू द स्कूल, ठीक है, और वो स्कूल में 9 बजे से 3 PM के बीच में आके और अपनी बुक्स लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आर्ट बुक के अंदर भी एक्टिविटीज़ आप लोगों को दी जाएंगी। कंप्यूटर में सभी बच्चों के पास कंप्यूटर की बुक होनी चाहिए। कंप्यूटर की बुक भी आप स्कूल से ले सकते हैं अगर आपने नहीं ली है तो लगभग 4 to 5 चैप्टर्स, ऑन एन एवरेज 4 चैप्टर्स बनते हैं, एक्सेप्ट 9th क्लास में 5 चैप्टर्स हैं। तो 4 चैप्टर आपके होंगे, वो उसी प्रकार से होंगे। टीचर उनके वीडियो शेयर करेंगे, रिटन नोट शेयर करेंगे और आपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस और जो एक्सरसाइज के अंदर जो दे रखी हैं बुक के अंदर एक्सरसाइजेज वो आपने बुक में ही कवर करनी है और जो आपने रिटन नोट्स हैं वो आपने कंप्यूटर की फेयर नोटबुक के अंदर कवर करना है। डांस के वी हैव स्टार्टेड कि आप कि हर एक क्लास में हम 2 डांस सॉन्ग्स कराने की कोशिश करें, ठीक है। तो अरुण सर हैं जो आपके डांस टीचर हैं और नीचे महिमा मैम हैं 2nd क्लास तक,
ठीक है। सो बोथ ऑफ द टीचर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड। उनके लिए बड़ा मुश्किल है डांस की वीडियो बनाना, क्योंकि ऑडियो का कनेक्शन और फिर बार बार म्यूज़िक चलाना, मैं उनको देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, बट स्टिल दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। दे आर आल्सो लर्निंग दिस न्यू प्लेटफॉर्म, ठीक है। दे आर आल्सो इंजॉइंग दिस चैलेंज टू कम अप विद अ प्रॉपर वीडियो, और जिसमें वो आपको एक सॉन्ग पूरी 15 to 18 डेज़ के अंदर 2 सॉन्ग कराने की वो कोशिश करेंगे। हर एक सॉन्ग को उन्होंने 4 डिफरेंट पोर्शन में बांट दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग जो 6 मिनट्स का है, ठीक है, तो पहले दिन जो आपको वीडियो शेयर किया जाएगा वो 2 मिनट्स की कोरियोग्राफी होगी। सेकेंड डे आपको जो वीडियो शेयर किया जाएगा वो 3 से जो उसका पोर्शन होगा नेक्स्ट 2 मिनट्स का, और थर्ड डे फिर लास्ट 2 मिनट्स का, ठीक है। और जो फोर्थ डे जो वीडियो होगा उसमें टीचर आपको पूरा सारा रिवाइज़ करके दिखाएगा, ताकि आप, अब बहुत सारे एंथुजियास्टिक बच्चे होते हैं जो डांस सीखना चाहते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि किस लाइन के साथ कौन सा स्टेप करना है, राइट, अगर ये ब्रेकअप आपने कर लिया तो यू विल बी एबल टू डांस वेरी नाइसली, राइट। देन वी विल कवर दी जीके एज वेल, ठीक है। 1st to 5th तक जीके है जो वो ऑक्सफोर्ड की है, और सभी के बुक्स के साथ ही है, ठीक है। जीके में भी वी आर ट्राइंग टू कवर 25% और मोर देन दैट, ठीक है। ये जीके की बुक्स 6 to 8th हैं, वो रोहन पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं ली है तो यू कैन कम इन टू दिस स्कूल बिटवीन 9 o'clock to 3 PM इन द इवनिंग और द आफ्टरनून, ठीक है, और वहाँ आप अपनी बुक्स ले सकते हैं। और फोनिक अभी हम छुट्टियों में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोनिक के लिए जो आपकी इंग्लिश लैब के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, रीडिंग बुक्स हैं, जिनके थ्रू आप फोनिक के जो रूल्स और लॉजिक हैं वो समझेंगे। तो जब तक वो बुक आपके पास नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड फोनिक वेरी एफिशिएंटली, राइट। सो फोनिक वाला पोर्शन है, वी विल डू इट इन द मंथ ऑफ, ठीक है, व्हेन द स्कूल ओपन, राइट, ठीक है। जब स्कूल ओपन होगा तो हम फोनिक का सारा काम उसके अंदर करेंगे। अब आफ्टर 16th of June व्हाट विल डू, ये एक्स्ट्रा सारे सब्जेक्ट 9 to 12th के अंदर तो हैं नहीं, तो 9 to 12th के अंदर हम क्या करें। अब 9 to 12th तो मैंने बता दिया, 9 to 12th के बच्चे बहुत मकरे हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था कि कैसे ये 1 सेकेंड, कैसे ये 40% बच्चे ही क्लास 10 करते हैं, ठीक है। तो इनकी परफॉर्मेंस तो आप लोगों से भी बहुत वो होगी, ठीक है, बड़ा मुश्किल होगा इनकी परफॉर्मेंस को तो देखना, ठीक है। तो यहाँ वी हैव डिसाइडेड दैट विल नॉट गो विद एनी ऑफ दी एडिशनल सब्जेक्ट, इनके वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है, तो वी विल गो ऑन द डेली बेसिस रिवीजन वर्कशीट ऑफ द मेन सब्जेक्ट, राइट, ठीक है। तो एक 9th और 10th में कंप्यूटर का काम ज़रूर होगा, बाकी आर्ट वर्क का, डांस का, जीके का, फोनिक का, ये सारे सब्जेक्ट्स वी आर नॉट गोइंग टू कवर इन द 9 to 12th, ठीक है। 10th और 12th में वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन नोट्स, और जो अभी CBSE के सैम्पल पेपर्स आने स्टार्ट हो गए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो बच्चों को शेयर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आप उसके अंदर अपना कर पाएँ। अब दिस वाज द ओवरऑल structure that how we are going to deliver you the homework for next 15 to 20 days. थोड़ा सा इसको ऐसे समझो बेटा कि रोज़ाना इतने सारे सब्जेक्ट का काम नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम शुरू करते हैं कि 1 तारीख है, ठीक है, फिर 2 तारीख है, फिर 3 तारीख है, और फिर 4 तारीख है, तो 1 तारीख को जो काम दिया जाएगा वो मेन सब्जेक्ट का दिया जाएगा, राइट, ठीक है। और यहाँ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का दिया जाएगा 2 तारीख को। फिर 2 तारीख को मेन सब्जेक्ट का कोई काम दोबारा नहीं दिया जाएगा। फिर 3 तारीख को दोबारा से मेन सब्जेक्ट का काम दिया जाएगा, और 4 तारीख को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का काम दिया जाएगा। तो अगर 20 डेज़ की आपकी वेकेशंस हैं, ठीक है, तो 10 दिन आपको मेन सब्जेक्ट का काम मिलेगा, और 10 दिन आपको आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स का काम मिलेगा। तो ऐसे करके आपको ऑल्टरनेटिव डेज़ के अंदर काम मिलेगा, ठीक है। आप अपना काम भी पूरा कर पाओगे, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की जो चीज़ें आपकी रहती हैं वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, right? So this is how we have planned your next 20 days of the academic. Up, I would like to concentrate on this last topic, which is very, very important, which is weekly surprise task and challenges. बच्चों देखो,
इट इज़ गुड दैट वी आर लर्निंग आर्ट थिंग, इट इज़ वेरी गुड वी आर लर्निंग डांस थिंग, ठीक है, बट लेट्स बी मोर रियलिस्टिक, लेट्स बी मोर प्रैक्टिकल, राइट। आर्ट वर्क हम स्कूल में सीखते हैं, स्कूल इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसमें हम सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। स्कूल इज़ नॉट अ फैक्ट्री, स्कूल इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्कूल इज़ नॉट अ वन वे और समथिंग, ठीक है। एक बच्चा जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है और 12th क्लास पास आउट करके जाता है, तो ही और शी शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द डिसिपल प्रेजेंट इन द स्कूल, ठीक है। उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी आना चाहिए, उसको डांस का काम भी आना चाहिए, उसको स्पोर्ट्स का काम भी आना चाहिए, स्पोर्ट्स भी खेलना उसको आना चाहिए, उसको पढ़ाई भी आनी चाहिए, उसको सब कुछ आनी चाहिए, ताकि जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करें। एंड व्हाट इज़ प्रोफेशनल लाइफ? प्रोफेशनल लाइफ व्हेन यू एंटर इनटू योर ग्रेजुएशन, इनटू योर कॉलेज, व्हेन यू ऑप्ट फॉर अ प्रोफेशनल लाइफ ओवर देयर, ठीक है। आपने सारी चीज़ें अपने स्कूल टाइम में देख रखी हैं, सीख रखी हैं, ठीक है। जिस भी चीज़ में आप बेस्ट हो, जिस भी चीज़ में आपकी कम इनपुट लगाने से ज़्यादा आउटपुट आ रही है, किसी भी चीज़ में जिसके अंदर आप बहुत इंटरेस्ट लेके कोई काम करते हो, ठीक है, उसी चीज़ में आपने अपना प्रोफेशनल करियर बनाना चाहिए, राइट। सो आर्ट वर्क सीखना, कंप्यूटर सीखना, डांस सीखना, जीके सीखना, फोनिक्स सीखना, ठीक है, इनकी भी अपनी रेलेवेंस है। और कमर्शियल चीज़ें आई वुड से कि जो रियल टाइम पे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अभी आज आप अपने घर में, ठीक है, आप कपड़े धोना जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है, आप घर की सफाई करना जानते हो या नहीं जानते हो, आप अपने पैंट शर्ट को, निकर को, ठीक है, इन चीज़ों को आप प्रेस करना जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। घर में किसी दिन आपके मम्मी पापा को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो क्या आप बिल्कुल बेसिक अपने लिए दूध गर्म करना, ठीक है, या रोटी बनाना या ब्रेड से कुछ बनाना, ये काम आप जानते हो या नहीं जानते हो, राइट। आपकी मम्मी बीमार हो गई, आपके पापा 2 दिन से बाहर हैं, ठीक है, तो क्या आप घर में झाड़ू पोछा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट। ये बहुत रियल टाइम रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है, ये बहुत रियल टाइम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखिए इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पास एक बाइक होती थी, राइट। तो आई वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ क्लीनिंग माई बाइक, मैं अपनी बाइक को बहुत अच्छे से साफ़ करके रखता था, ठीक है। कंपैरेटिवली मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, जिसके पास मेरे से भी बहुत अच्छी बाइक थी, ठीक है, और उस समय वो बहुत कॉस्टली बाइक होती थी और बहुत बढ़िया बाइक होती थी। हम पूरी क्लास में क्रेज होता था कि इनके पास बहुत अच्छी बाइक है, बट वो बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं रखता था। तो एवरी 4th और 5th डे ही हैड टू विज़िट वॉशिंग सेंटर, ठीक है, वो एक जो सर्विस स्टेशन होते हैं जहाँ पे बाइक और गाड़ी साफ़ करते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे जाते थे। तो वो हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी को साफ़ करवाता था, ठीक है, अपनी बाइक को साफ़ करवाता था, ठीक है, और उसमें उसके पैसे भी लगते थे और उसमें उसके क्या नाम है, समय भी लगता था, टाइम भी लगता था। तो फिर हम जैसे कई बार हम डिस्कस करते थे कि भैया तूने इस महीने में केवल बाइक साफ़ करवाने में इतने पैसे खर्च कर दिए। तो जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमें बहुत लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है, राइट। तो जब हम एक दूसरे की पॉकेट मनी कंपेयर करते थे तो मैं ये समझता था कि भाई 400-500 रुपीज़ के आसपास मैं पैसे ज़्यादा बचा लेता हूँ केवल इसलिए क्योंकि मैं अपनी बाइक साफ़ कर लेता हूँ। ये बहुत एक छोटा एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप कपड़े अगर आप धोना जानते हो, राइट, तो आप कॉलेज टाइम में या बाद में आप खुद अपने कपड़े साफ़ करके आप अपने पैसे बचा सकते हो, राइट। अगर आप घर का काम करना जानते हो, किचन वर्क आप जानते हो, खाना बनाना जानते हो, कुकिंग करना जानते हो, ठीक है, तो आप जब आप बाहर प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, जब आप जॉब लग जाएंगे, कहीं पे रहना पड़ जाएगा, ठीक है, तो आपको बाहर खाना खाने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप खुद जानते हैं, राइट। तो ये बहुत छोटी रियल लाइफ की चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इनको आप ठीक से करेंगे तो यू विल हैव अ लार्जर values in your life, you will have very positive attitude, right। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2 एक्टिविटीज़ हमने आपको दी थी। पहली एक्टिविटी की टू क्लीन योर व्हीकल,
बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे से साफ़ किया, ठीक है। और वो इसलिए नहीं है कि आपने साफ़ किया, फ़ोटो खिंचवा दी और भेज दी, नहीं, वो इसलिए है कि भाई देखो हफ्ते 10 दिन के अंदर एक बार आपने अपना व्हीकल को साफ़ करना ही करना है, ठीक है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग ए किड इन योर फैमिली, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपको एक एनवायरनमेंट डे, ठीक है। अगर हर बच्चा एक पेड़ को लगाए और उस पेड़ को एक अपना नाम दे, अपना एक फ्रेंड बनाए, ठीक है, और उसकी रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन उसकी देखभाल करे, उसमें पानी डाले, उसमें प्रॉपर जो ये डलते हैं खाद वगैरह डलती उसको डाले, और वो देखे कि भाई जब मैं 5 साल का था जब मैंने ये पेड़ लगाया था, आज मैं 15 ईयर्स का हो गया हूँ, तो देखो इस पेड़ को कितना बड़ा हो गया है। दिस माई अचीवमेंट, दिस माई पर्सनल अचीवमेंट। सो दैट कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी मदर नेचर, राइट। सो इसी तरह के रियलिस्टिक चैलेंजेस और टास्क आप लोगों को नेक्स्ट 3 संडेज़ में दिए जाएंगे, ठीक है। तो उनको उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, अपने पेरेंट्स को भी करना है। आई एम अगेन आई एम टेलिंग यू कि पॉजिटिविटी, राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डू ओनली फॉर द फोटोज देन डोंट डू इट। अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है, इस तरह की टास्क देने से बच्चे का टाइम खराब होता है, या मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं, डोंट डू इट। बट इफ़ यू आर डूइंग इट, डू विद द पॉजिटिविटी, ठीक है, डू विद द पॉजिटिविटी। वॉट एवर यू आर डूइंग यू शुड लर्न, यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट, कि भाई इसका क्या लॉजिक है, राइट। So this was the meeting points that I would like to discuss with the teachers, students and the parents. Today I have tried to utilize your panels, classroom panels, and I find it is very easy to take the discussion or the meeting or making videos on the panels. So next time I'll be coming up with more meetings on the panel itself. ये बहुत अच्छा है, कम टाइम लगता है, बढ़िया से आप अपनी सारी बातें इसके ऊपर लिख के समझा सकते हो, और इसी हिसाब से आपके टीचर्स भी अपने पैनल्स के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, respected teachers and the parents for listening me out, for taking out time to understand my concept behind this summer vacations, ठीक है। उम्मीद है कि जितने सिस्टमेटिक तरीके से हम आपके नेक्स्ट 20 डेज़ को प्लान करना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम आउटपुट आप लोगों का निकल पाए, जितना एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आपको एक मैक्सिमम लर्निंग देना चाहते हैं नेक्स्ट 20 डेज़ में, ठीक है, उतनी मैक्सिमम लर्निंग आप अपनी निकाल पाएँ। So that was all. If you have any question, drop a message to me. बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट रहती है, ठीक है, this is my number, ठीक है। If you have any problem regarding anything, if any parent would like to add anything, they have a better suggestions, they have better ideas to implement in the school, we are waiting to hear them on my number. Thank you very much. Have a nice day. Stay safe, stay at home. Thank you.